बेटी के बाल उतरवाने लंदन से वडोदरा आई नैन्सी पटेल की अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मौत हुई है, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी गई। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में घटी भीषण विमान दुर्घटना में फ्लाइट में सवार 242 में से 241 यात्रियों की दुखद मौत हो गई है, जिसमें वडोदरा के वारसिया इलाके में रहने वाली नैन्सी पटेल का नाम भी शामिल रहा। नैन्सी चैत्रेश पटेल और उनके पति लंदन में स्थायी हैं। 15 दिन पहले ही वे अपनी बेटी के बाल उतरवाने के लिए वडोदरा आई थी और वापस लंदन लौटते वक्त हादसे का शिकार बनी। उनके डीएनए सैंपल मैच होने पर कल उनका शव परिजनों को सौंपा गया था, जो कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद आज सुबह नैन्सी चैत्रेश पटेल का परिजनों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में इस मौके पर लोग मौजूद रहे। नैन्सी अपनी 2.5 साल की बच्ची के बाल उतरवाने के लिए ससुराल वडोदरा आई थी। बाल उतरवाने की विधि के बाद वापस लौटते वक्त नैन्सी पटेल हादसे का शिकार बनी और 2.5 साल की यान्सी ने अपनी मां हमेशा के लिए गंवा दी। छोटी सी बच्ची अपनी मां को लगातार याद कर रही है, लेकिन अब वो अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। गुजरात के वडोदरा में बरसती बारिश के बीच खस्ताहाल मकान धराशायी होने से हड़कंप मच गया। वडोदरा में मानसून की विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है और साथ ही दुर्घटनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। वडोदरा के खोडियार नगर स्थित राजीव नगर 2 में बारिश के साथ ही पुराना खस्ताहाल मकान धराशायी होने की घटना सामने आई है। बीती शाम बरसती बारिश में ये पुराना खस्ताहाल मकान अचानक ध्वस्त हो गया। पिछले कई सालों से ये मकान बंद स्थिति में था, जिसका इस्तेमाल गोदाम के रूप में किया जाता था। आसपास के लोगों ने बार बार मकान मालिक को ये मकान उतार लेने की सलाह दी थी, लेकिन मकान मालिक ने गंभीरता नहीं समझी और आखिरकार ये मकान बरसती बारिश में ध्वस्त हो गया है। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने की कार्यवाही की। આ રાજીવનગર 2 ની વીઆઈપી રોડ છે। આ ગોડાઉન જૂનાનું છે। એ કેટલા 25 વર્ષથી બંધ છે। એ માણસ કાયમ માણસો લઈને વેચવા આવે છે। અમે સામે જ રહું છું અને મારો મકાન નંબર 33 છે। મેં એને કાયમ કહું છું કે ભાઈ આનું તું નિકાલ કર, આ બધું લટકેલું છે, શું કરવું છે તારે? તો કે મારે વેચવાનું જ છે। હવે વેચવાનું એવું કરીને આજે 25 વર્ષથી દિવસ કાઢે છે। અમારા છોકરા નાના નાના રમતા જ હતા, અમે બારણામાં જ બેઠેલા લસણ પોરતા હતા। અચાનક ધાબુ પડે ને અમે ઘરમાં ભાગી ગયા। એ તો સારું થયું કે અમને કશું જાનહાનિ નહીં થઈ। અમારા બારણા સુધી રીટો આવી, પણ અમે અંદર ના ધમ તે જાણે બોમ્બ ફૂટતો એનાથી જ ખતરનાક અવાજ આવ્યો। અને આ માલિક આવ્યો તો એવું કહે છે કે તમે મને ધમકાવો છો। અમે એને શાંતિથી વાત કરી કે ભાઈ જે અમારું નુકસાન છે તું આલી દે। માલિક એના પપ્પાનું નામ એ હતું નરેશભાઈ હતું, પણ એના પપ્પા કેટલા વર્ષથી ઓફ થઈ ગયા અને છોકરાઓ આવીને ફરીને જતા રહે। વડોદરા શહેરનો પૂર્વ વિસ્તાર છે। ખોડિયારનગર 4 રસ્તાથી નજીક રાજીવનગર 2 લગભગ 35 થી 40 વર્ષ જૂનું મકાન અહીંયા ધરાશયી થયું છે। સ્થાનિકોએ વર્ષ 1.5 વર્ષ પહેલાં અહીંયા નરેશ શાહ કરીને જૂના જે દાદા રહેતા હતા એમના સનને જણાવ્યું હતું કે તમારું જે મકાન છે પડી જશે અને અમારા કોઈ નાના છોકરાઓ રમતા હોય કે દાદા કે કોઈને પણ વાગી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે। એમના વાહનો પણ છે, એમને પણ નુકસાન થાય એવી પરિસ્થિતિ એમને વર્ષ 1.5 વર્ષ પહેલાં જણાવેલું હતું। તે છતાંય આ લોકોએ જે આ નરેશ શાહ કરીને છે એમના સન જે છે અહીંયા હવે રહેતા નથી, પણ એનું ગોડાઉન તરીકે યુઝ કરતા હતા। હવે આ ગોડાઉન તરીકે યુઝ કરતાં કરતાં જ્યારે આજે પડ્યું છે, બહુ સારી કામગીરી ફાયર બ્રિગેડ અહીંયા આગળ હાજર થઈ ગયો છે, પણ કોઈની જાનમાન જે છે એના વાહનો છે,
વેગેનાર ગાડી હતી, એટલે વાહનોને જે નુકસાન થયું છે એની જવાબદારી કોની? જ્યારે આ જવાબદારી વિસ્તાર સ્થાનિકોએ જ્યારે એમને કીધું કે ભાઈ અમારા વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે, ત્યારે એમના જે નરેશ શાહ છે એમના સને આ લોકોને ધમકાવવામાં આવ્યા કે ભાઈ તમારાથી જે થાય એ કરી લો, 1 બી રૂપિયા મળે નહીં. તો આ વસ્તુ સરેસર ખોટું છે. ખરેખર કોર્પોરેશન 100 મીટર અહીંયાથી વોર્ડ નંબર 4ની ઓફિસ દૂર છે અને મેયરનો વોર્ડ છે. તો આવા જર્જરિત મકાનને જ્યારે આ લોકો વેરો ઉઘરાવવા આવતા હોય તેમને ખબર બી પડતી હોય ને કે આ જર્જરિત મકાનો ગમે ત્યારે પડી જશે, તો આ લોકોને નોટિસ આપી અને પાડી દેવા જોઈએ એવી કોર્પોરેશનને મારી અપીલ છે. અને જે પણ લોકો અહીંયા આગળ ને નુકસાન થયું છે એને એના જે સ્થાનિક દ્વારા જેનું ઘર પડ્યું છે એના દ્વારા એમને वरतर આપવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. लंदन में स्थित वडोदरा के बिजनेसमैन केतन शाह अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना का शिकार बने हैं. उनके अंतिम समय में उनके परिजनों ने मौजूद रहकर उन्हें अंतिम विदाई दी. अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना में मूल भारत के और यूके में स्थायी शाह परिवार के बिजनेसमैन केतन शाह का भी दुखद निधन हुआ है. उनके डीएनए सैंपल मैच होने पर उनका शव अंतिम क्रिया के लिए कल परिजनों को सौंपा गया था, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे यूके से आने के बाकी होने की वजह से एसएसजी अस्पताल के कोल्ड रूम में उनके शव को रखा गया और आज उनकी अंतिम क्रिया का आयोजन किया गया. वडोदरा के गोत्री इलाके में टीबी अस्पताल के क्वार्टर्स के पीछे स्थित रोशनी पार्क में रहने वाले केतन शाह पिछले कई वक्त से परिवार के साथ लंदन में स्थायी थे और वहां शॉपिंग मॉल रन करते थे. केतन शाह एक सप्ताह की छुट्टी लेकर भारत के वडोदरा में रहने वाले उनके पिता से मिलने आए थे. 12 जून को जब वे लंदन वापस लौट रहे थे तब हादसे का शिकार बने. उनके डीएनए मैच होने पर शव को अंतिम क्रिया के लिए परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार आज आयोजित किया गया. इस मौके पर रोते बिलखते हुए परिजनों ने भारी मन और नम आंखों के साथ उन्हें विदा दी. गुजरात के अहमदाबाद की विमान दुर्घटना में वरनामा की तरलिका पटेल का भी दुखद निधन हुआ है. अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना में वडोदरा शहर जिला के कई लोगों की मौत हुई है. उनमें वरनामा में रहने वाली तरलिका पटेल भी शामिल हैं. उनके डीएनए सैंपल मैच होने पर उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थान से आयोजित की गई. इस मौके पर बड़ी संख्या में रिश्तेदारों, परिजनों और गांव के लोगों की उपस्थिति रही. डभोई विधायक शैलेश मेहता ने भी इस मौके पर उपस्थित रहकर मृतक को श्रद्धांजलि दी. तरलिका पटेल की अंतिम क्रिया के चलते समूचे गांव में शोक की लहर देखने मिली. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके,
बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why
BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में पकड़ी गई 2.5 करोड़ की शराब मामले छानी पीआई को सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के ग्राम पंचायत चुनाव के माहौल के बीच वडोदरा के दशरथ गांव निकट बालाजी ट्रेडर्स के गोदाम से स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा शराब का जत्था पकड़ा गया था, जिसमें 2.44 करोड़ की शराब बरामद हुई है। इस मामले वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार ने छानी पीआई AP गढ़वी को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच ACP लेवल के अधिकारी को सौंपी गई है और जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में 2636 बॉक्स में 1,36,552 बोतल शराब बरामद हुई थी, जो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर गोवा से मंगवाई गई थी और गोधरा पंचमहाल भेजी जानी थी। इस मामले में छानी पीआई गढ़वी के शामिल होने की जानकारी के आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद भारत और अमेरिका के संबंध तनाव में थे, जिसके बाद आखिरकार दोनों मुखियाओं के बीच बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। गुजरात में हो रही बारिश कहीं किसी को राहत दे रही है तो कहीं किसी की परेशानी का कारण बन रही है। ऐसा ही कुछ भावनगर में देखा गया। गुजरात के भावनगर जिले के वखबीपुर इलाके में रंगोटी नदी के तेज बहाव के बीच एक परिवार के 5 सदस्य फंस गए, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। प्रशासन को सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर
इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे ये परिवार 2 दिनों से भूखा प्यासा फंसा हुआ था। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने 2 अन्य परिवारों के 4 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद टीम लौट गई थी। लेकिन एक और कॉल मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत फिर से घटनास्थल पर पहुंची। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद वडोदरा में हर साल धूमधाम से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद राज्य भर में शोक की लहर है। इसी बीच हर साल भव्यता से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस बार सादगी से मनाई जाएगी। इसके बारे में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी ने भावुक संदेश दिया है। इस्कॉन मंदिर के द्वारा परंपरागत तरीके रथ यात्रा 27 जून को बड़ौदा रेलवे स्टेशन से निकलेगा 2:50 पे। लेकिन जो 12 तारीख को विमान हादसा हुआ, ये हादसा हम सब के लिए एक बड़ा दुखदायी है, असहनीय है, असहनीय है और सबके हृदय को विदीर्ण कर दिया है। तो मंदिर ने सर्वप्रथम मंदिर और मंदिर के भक्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा उन सब के लिए हम सब एक शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सहन शक्ति दें। और जो ये दुर्घटना हुई, ये घटना को लेकर के मंदिर ने डिसाइड किया है कि रथ यात्रा भगवान की सादगीपूर्ण निकलेगी।